regarding the gymnosperm. And prior to that, I have told you that according to five kingdom system, the kingdom plenty is important for us, and from kingdom plenty, large number of groups including algae, fungi, bryophyte, pteridophyte, and fifth and very important group was spermatophyta, which is further divided into gymnosperm and angiosperm. As far as present day circumstances considered, in the present era or during the present days, angiosperms are predominant, and just about 150 billion years ago, million years ago, gymnosperms were predominant. Even if we look to gymnosperms, present gymnosperm or distribution of gymnosperm in the world, mainly they are present in the alpine zone or areas wherever there is high altitude. I think you might be known with the area from India, that is area of Uttaranchal or area of Tehri Garhwal. Have you known with this area, Tehri Garhwal and Uttaranchal, specifically like Mussoorie, Dehradun and onwards area, which is to the north border of India? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So during 1850s, I think you might be known, during the period of 1850s, that was the period of Britishers, those who have conquered our country, and during that time, for establishing railway network, they have cut large number of forest, and basically this forest was a coniferous forest. I think many of you might have observed during the earlier time, for railway routes large number of wood was required, जिसको हम बोलते हैं, अभी अभी हम देखते हैं रेलवे का जो रूट होता है उसके नीचे सीमेंट ब्लॉक्स रहते हैं. ड्यूरिंग अर्लियर टाइम देयर वाज अ wooden blocks, and normally these wooden blocks are made up of gymnospermous wood. So in our country, from the area of Uttar Pradesh, present day Uttarakhand, some part of Bihar, West Bengal, that is eastern and western Himalayan forest. This eastern and western Himalayan forest consists of gymnosperm. Gymnosperm wood is supposed to be soft wood. So my point is that during the earlier time, that is 1850s, in our area also there was, in our country also there was a huge forest of conifers, but for railway construction and for other developmental activities, this forest was disturbed or cut. Now, as far as gymnosperms considered, we are not much known regarding the gymnosperm, but during your graduation, you have gone through three important genera such as Cycas, Pinus, and I think Ephedra. So you are known with these three genera. So now we can have a just idea regarding the जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म के रिगार्डिंग हमें आइडिया चाहिए करके मैंने एक स्लाइड बनाई है. लेफ्ट हैंड साइड का फोटोग्राफ जो है, यू कैन ऑब्जर्व द फोटोग्राफ व्हिच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ए सिंगल फोटोग्राफ व्हिच शोज large number of flowers, fruits, leaf and images of a plant from gymnosperm. So broadly I can show you, you just observe this image. As far as this image considered, much of the portion of this image is underground, that is root is rhizomatous, and just 1/4 part or less than 1/4 part is above ground. So this is supposed to be smallest gymnosperm. On the contrary, you can observe this gymnosperm or this tree, it is a cone like or pointed toward the apex and broad toward the base. You can just observe these three images, first one, second one, third one and fourth one. In all these four, these are conifers, that is they are showing pointed apex and basal broad. Then you can observe 1, 2, 3, 4, 5. So if you observe to these different, these are the fruiting bodies, or these are male and female cones of a gymnosperm. Then you can observe here leaves also. So you can observe this one, leaf of Cycas. This one is again Cycas, where crown of leaf is observed. So let us have an idea regarding gymnosperm. What are the different groups of gymnosperm? What are their characteristic feature? कल हमने कुछ
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कशन किया था. I have already told you that out of large number of gymnosperms which were predominant during the earlier time, now less than 1,000 known species of gymnosperms are available. So let us we should have an idea regarding this group, that is gymnosperm. So gymnosperm includes 12 main families. Normally, I think you might be known any group which is divided into subclasses, orders, and families. So out of different families, there are only 12 main families and 83 genera which contain more than 1,000 species. बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, जैसे कि एंजियोस्पर्म में हम देखते हैं more than 450 families and more than 3.5 lakh individuals are scientifically known. But in case of gymnosperm, there are only 12 main families, 83 genera and 1,000 species. So just remember the fact. क्या आप सुन रहे हैं? Yes, sir. हाँ. So gymnosperm consists of only 12 main families, 83 genera and 1,000 known species. Here is some gist of entire gymnosperm. There are about 5 subclasses. First one, that is Cycadidae. Second one, Gingoidae. Third one, Nitidae. Fourth one, Pinidae. And fifth one, extinct grouping. क्या आपके ध्यान में आ रहा है? Gymnosperm divided into 5 subclasses. To be more precise, 4 subclasses and 1 extinct group. Extinct का मतलब है those who have lost their existence in the past. That means during the course of evolution, some plants have lost. I think at least some of you should be known that Cycas is called as a living fossil. Is it right? Hello? Hello? Anybody should reply. Yes, sir. So you should be known that Cycas is known as a living fossil. Why Cycas is called as a living fossil? Because Cycas specimens are available in the fossilized form, that is about 150 to 350 million years ago they were present, and even now we observe these living plants, and so it is called as a living fossil. That means available in the fossilized form and also available in the living form. So वैसे extinct groups है, कुछ extinct group के orders है Benititales, then Ithmanthicales, then Pentoxylales and Zyganomasciales. So these are some of the extinct orders. सिर्फ मैं आप सभी को बताता हूँ, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं. आई एम गोइंग टू शेयर द पीपीटी एज वेल एज नोट्स एज सून एज इट कंप्लीट्स. जरूरी नहीं है कि आप लिख लो, अगर लिख लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं लिख लिए सिर्फ सुन भी लिए तो भी अच्छा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ टॉपिक आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द नोट्स, सो नो नीड टू वरी मच. सो सब क्लास आर Cycadidae, subclass Gingoidae, subclass Nitidae, subclass Pinidae and some of the extinct groups. So subclasses are further divided into orders. So Cycadidae divided into order Cycadales, Gingoidae divided into order Gingoiales, Nitidae divided into order Velvetiales, order Nitales, order Ephedrales. Subclass Pinidae, Pinidae divided into Pinales, Araucariales and Cupressales. And these are different extinct groupings. So this is just a idea regarding what are the different groups of gymnosperm. अब उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रॉड क्लासिफिकेशन आपको बताता हूँ. सिर्फ ध्यान में रखो कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, उसको ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है. मैंने पहले के स्लाइड में जो दिखाया था सब क्लासेस, उसके बाद ऑर्डर, फैमिलीज और उसके इंडिविजुअल्स मैंने दिखाए नहीं थे, वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ आप सिर्फ देख लो. So gymnosperm consists of 12 main families and 83 genera which contain more than 1,000 known species. क्या आपको स्लाइड दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Just a minute, मैं थोड़ा विजिबिलिटी उसकी इंक्रीज करता हूँ so that it is easy.
So the gymnosperm includes 12 main families and 83 genera which contain more than 1000 known species. मैंने फिर से बताया, they were predominant in Triassic and Jurassic period and now they are extinct as far as डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म कंसिडर. डिस्ट्रीब्यूशन अगर जिम्नोस्पर्म का देखना है तो वी शुड गो थ्रू जस्ट मिनट. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इन इंडिया. हम देखते सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. आपको डायग्राम दिख रहे हैं? हेलो, यस सर. फोटोग्राफ दिख रहा है? जस्ट अ मिनट. सो दिस इज द photographic map of India, and in this map, just a minute, and in this map you can observe presence of a gymnosperm. यहाँ स्केल दिया गया है, that is लिस्ट कंसर्न कौन से है, नेवर मैंने लिस्ट दिखाई गई, एंड अकॉर्डिंग टू साइज यू कैन ऑब्जर्व. अगर आपको देखना है तो मैंने पहले ही बताया था नॉर्थ स्टेट्स में ज्यादा है. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिस वन इज अ पार्ट ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, दैट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर. So normally they are observed in a different area, but most of them are concentrated in north zone only, or toward eastern and western Himalaya and toward this northeast frontier region. Just a minute. So we can have another image also. So you can observe this image. कंपैरेटिवली बहुत छोटी इमेज है, बताता हूं, और कई अवेलेबल है. तो यू कैन ऑब्जर्व हियर लार्ज नंबर ऑफ कोन ऑफ जिम्नोस्पर्म. जस्ट मिनट. सो डिफरेंट टाइप, ये फॉरेस्ट टाइप्स है. दिस वन इज अ वेस्टर्न घाट एंड दिस फॉरेस्ट इज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयन फॉरेस्ट. देन जस्ट मिनट, अगर अवेलेबल है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म इन वर्ल्ड देख लेते. So you can observe where these gymnosperms are distributed. Mostly they are observed in the northern hemisphere. So this one is a eastern and western coast area of India. मैंने कल पहले आपको बताया था. क्या मैंने कल आपको एक बुक का नाम बताया था? पाम्स ऑफ, हेलो, पाम्स ऑफ इंडिया बताया था नाम मैंने? No, sir. शायद नहीं बताया था. सो देयर इज अ एरिया व्हिच इज नोन एज अ मलबार कोस्ट. मलबार कोस्ट का मतलब है केरलची किनारपट्टी, व्हिच इज नोन एज अ मलबार कोस्ट. So on the Malabar coast, large number of gymnosperms and palms are available. So as far as our family is considered, I have already told you that subclass Cycadae, order Cycades, family Cycadaceae, which is represented by Cycas. Then there are another family, that is Zamiaceae. Zamiaceae includes genera like Devon, Bovinia, Macrozamia, Lepidozamia, Encephaloratus, then Stangeria, then Ceratozamia, Microzamia, Microcycus and Zamia. मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं कि इसमें से बहुत सारे जनरा जो है, दीज आर एक्सटिंक्ट जनरा. और इन एक्सटिंक्ट जनरा के बारे में मैं फिर से बताता हूं कि जामिया, माइक्रोजामिया, सिराटोजामिया, डिवान, these are presently available, while some of the genera like Bovinia are on the verge of extinction. These are close relatives of Cycas. Then second subclass, that is related to Gingoids or Gingoidae. From Gingoidae, you might be known with the Gingo. Just have a idea regarding the Gingo. क्या आपने गिंगो का नाम सुना है? हेलो. Yes, sir. गिंगो. Yes, sir. गिंगो बाइलोबा. इट्स नेम इज गिंगो बाइलोबा. शायद आप लोगों को पता होगा. सो
This one is a twig of ginkgo. Ginkgo ki twig hai. It is a huge tree, and you can observe here the tree of a ginkgo. And this ginkgo biloba is again a extinct, on the verge of extinction. In our country, it is available only again in the northern area. Specifically, I have observed this genera at Indian Botanical Research Institute or National Botanical Research Institute, NBRI, Lucknow. I can show you photograph later on also. But here is a huge tree of ginkgo, and ginkgo is available in Burma, China, and Japan. Specifically, some of Buddhist peoples might be known because this is a holy tree, holy plant for Sri Lanka and Buddhist and Burma. So this one is a ginkgo biloba. Then next one, ginkgo, from Ginkgoaceae ginkgo. Then next subclass Nittidae, and from Nittidae always order Velvetschia, and genera is Velvetschia. You can observe here the name, that is genera, that is Velvetschia. So this genera is genera Velvetschia. Then order Nettles. From order Nettles, genera is Nitum. I think I have given you idea regarding the genera Nitum. Just a minute. Nitum, I have already told you regarding genera Nitum, that is species Nitum ula. जस्ट मिनट, अगर कोई वीडियो अवेलेबल है नीटम का तो हम देख लेते. जस्ट मिनट. जिम्नोस्पर्म नीटम, सुन रहे हैं? वीडियो दिख रहा है? यस सर. हाँ सर. आवाज आ रही? यस सर. वीडियो की आवाज आ रही? नो सर. नहीं. नो सर. जस्ट ऑब्जर्व करो. हेलो हेलो. यस सर. यस सर. जस्ट मिनट. आप थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए तो देख लो. जस्ट मिनट. एक वीडियो लगा रहा हूँ, उसका सिर्फ देख लो 2 मिनट के लिए.
हेलो हेलो। Yes, sir. sir. एक्चुअली कुछ इशू था करके मुझे मीटिंग छोड़ के बाहर निकलना पड़ा। ओके सॉरी। सो हियर वी कैन ऑब्जर्व द गिंगो एल्स। मैंने गिंगो के बारे में बताया था, उसके बाद वेलवेट शिया, उसके बाद निटेल्स। ओके सॉरी। आप लोगों ने, सभी लोगों ने नीटम का प्लांट देखा? हेलो। Yes, sir. हाँ, नीटम में लीफ कैसे थे? फुल्ली एक्सपांडेड एंड लाइक जिम्नोस्पर्म, लाइक एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जैसे मैंगो के लीफ होते हैं, हिबिस्कस के लीफ होते हैं, कॉटन के लीफ होते हैं, वैसे फुल्ली एक्सपांडेड। प्रायर टू दिस वी हैव स्टडीड जिम्नोस्पर्म लाइक साइकस एंड पाइनस। In case of pinus, you call it as a needle. In case of cycas, I think you are better known. Leaves are compound. It has a we call it as a frond. So in case of all of gymnosperm, leaves are dimorphic. Di means two, morphic means morphologically. दो अलग अलग different type of leaves है. But in case of Nitum, the leaves are fully expanded and like other angiosperms. So you just observe the difference. मैं फिर से आपको एक सीन बताता हूं. Aquatic plant, example algae. Amphibious plant, example bryophytes. Terrestrial plants, example pteridophytes. Higher plants, example angiosperm and gymnosperm. मतलब जैसे भी हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट की तरफ जाते हैं तो फीचर कैसे है, तो इवोल्यूशन या प्रिमिटिव टू एडवांस्ड फीचर, नहीं तो कई बार बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम वाइस वर्सा प्रिमिटिव एंड एडवांस्ड जनरा रहते हैं. मैं आपको फिर से बताता हूं. हियर इज द एग्जांपल. पहले मैंने आपको साइकस बताया, उसके बाद मैंने आपको पाइनस बताया और उसके बाद निटम बताया था.
मतलब कैसा है, साइकस प्रिमिटिव, पाइनस comparatively middle or advanced, and Netum is most advanced. But remember well, Netum or Netales are called as क्रेडल ऑफ एंजियोस्पर्म. क्रेडल का मतलब है लॅडर और पाळणा, दोन गोष्टींना जोडणारा जो ब्रिज असतो, दॅट इज नथिंग बट द क्रेडल. सो नीटल्स ऑर्डर इज नोन एज द क्रेडल ऑफ एंजियोस्पर्म. देन फैमिली इपिड्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव इज इपिड्रा. और सबसे बड़ा ग्रुप जो है आप लोगों के लिए, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पाइन और ग्रुप ऑफ कोनिफरेस. सो फ्रॉम पाइनेल्स द एग्जांपल्स आर लाइक सीडरस. क्या आपने सीडरस देवदारा नाम सुना है? हेलो, सीडरस देवदार. सो सीडरस देवदार. देन पाइनस, कैथाया, इसिया, सुडोस्टुगा, लैरिक्स, सुडो लैरिक्स, तुजा, then Nothosuja, then Tileria, Abyss. So these are the members of family Pinaceae. Then Araucaria. Araucaria means हम जिसे बोलते हैं Christmas tree. Then as far as Araucariaceae family considered, the genera are like Araucaria, Olemia, and Agathis. Then another is family Podocarpaceae, and from family Podocarpaceae the genera are like Phylocladus, Lepidothammus, then Primnoptis, Sundacarpus, Halocarpus, Paraceticus, then Legistrostomo, Mongo, Saxothea, Microcaria. So these are the different genera from family Podocarpaceae, but important genera is this last one, that is Podocarpus. Then another family is Cupracales, order Cupracales and family Cupraceae. आपने शुरू में देखा था 12 फैमिलीज इंपॉर्टेंट है, जैसे पाइनेसी है, पोडोकार्पेसी है, क्यूप्रेसेसी है, टैक्सेसी है. आपने शुरू में देखा था, याद में है कितने मेन फैमिलीज थे? 12 एंड 83 जनरा. सो उसमें से एक फैमिली हमने जैमिएसी देखी थी, उसके बाद दूसरी पाइनेसी देखी, उसके बाद पोडोकार्पेसी देखी, उसके बाद क्यूप्रेसेसी, और अभी हम बात कर रहे थे दैट इज टैक्सेसी के. सो फ्रॉम टैक्सेसी, ऑस्ट्रोटैक्सस, सूडोटैक्सस, टैक्सस बकैटा, सिपेलोटैक्सस, अमेंटोटैक्सस एंड टोरिया. So these are the different living genera of gymnosperm, while extinct genera are like from family Cycadioideaceae. शायद आप लोगों को याद में होगा बीएससी सेमेस्टर 3 में आपको साइकाडियोइडिया के बारे में कुछ बताया गया था. हेलो हेलो. Yes. Yes, sir. Cycadioidea. So Cycadioidea is extinct genera. Then I think Enigmocarpon के बारे में भी कुछ बताया होगा. Yes, sir. Enigmocarpon. So Enigmocarpon, Sahanianthus, these are the fossil angiosperm, and Cycadioidea is a fossil gymnosperm. Then Williamsonia, Pentoxylase, Czechoslovakias, etc. These are the different genera available from gymnosperm. अब हम सीधा देखते, कल हमने जहां से कल का एंड किया था वहां जाते हम. Just a minute. So the representative are Cycas, Pinus and Netum. Netum का आपने अभी अभी वीडियो देखा था, so you have idea that this one, these are the cones of Netum. The next one, Cedrus, जिसको मैंने बोला था Cedrus देवदारा. Araucaria, Araucaria is a another different, you call it as a Christmas tree. Then Zamia, मैंने शुरू में बताया था कि Zamia का short अंडरग्राउंड या अबव ग्राउंड छोटा सा राइजोमेटस स्ट्रक्चर रहता है. जैमिया, माइक्रोजैमिया, सिराटोजैमिया, दीज आर द डिफरेंट स्मॉलर जनरा ऑफ साइकैड्स. देन थुजा, जिसको मैंने विद्या करके बताया था, इफिड्रा, वेलवेटसिया, दीज आर सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जनरा. मैंने बताया था कि एक्सटिंक्ट ग्रुप में साइकैडोफिलिकल्स, बेनिटाइटल्स एंड कॉर्डाइटल्स आर प्रेजेंट, and they were predominant during the Jurassic and Cretaceous period of Mesozoic era. That is about Paleozoic era, 541 to 251 million years ago. So gymnosperms were predominant around 250 million years ago. उसके लिए मैंने आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी के बारे में भी कल हमने देखा था, और दिस इज द पीरियड दैट इज अबाउट जुरासिक एंड ट्रायसिक पीरियड, ड्यूरिंग व्हिच जिम्नोस्पर्म, यानी देखो
Paleozoic era ancient, Mesozoic middle and Cenozoic era is a recent. So Mesozoic era के Jurassic and Triassic period में gymnosperms were predominant. You get it? Hello. Yes, sir. So Yes, sir. the entire history of the our Earth planet is divided into 3 era. First one Paleozoic, second one Mesozoic and third one Cenozoic. जैसा कि मराठी लिटरेचर या हिंदू लिटरेचर में कहा जाता द्वापार युग, आणखी कुठलं कलियुग वगैरे, सत्ययुग, द्वापार युग, कलियुग, that is the era. So just like that, these are the era and eras are divided into period. So from Jurassic and Triassic period of Mesozoic era, that is about 150 million to 250 million years ago, gymnosperms were predominant on our planet. उसके बाद मैंने आपको अभी अभी एक फोटोग्राफ दिखा रहा हूं. इट इज अ ट्री ऑफ पाइनस. क्या आपने नागपुर में पाइनस देखा है? पाइनस का ट्री देखा है? हेलो हेलो. No, sir. No, sir. साइकस देखा होगा बहुत जगह, बिकॉज Yes, sir. साइकस इज अ लिविंग Yes, फॉसिल. Yes, sir. साइकस इज अ लिविंग फॉसिल एंड पाइनस बिलोंग्स टू कोनिफेरस. नागपुर में पाइनस है, मैं जगह बताता हूँ. नॉर्मली जिम्नोस्पर्म्स आर स्लो ग्रोइंग. अरोकेरिया हो, थुजा हो, नहीं तो साइकस हो, नहीं तो पाइनस हो, दे आर स्लो ग्रोइंग. Second important thing, they require members of Endogoniaceae family from fungi in the soil for proper growth. कल मैंने आपको फोटोग्राफ में दिखाया था कुछ अलगल और फंगल मेंबर्स सॉइल में होते हैं और रूट्स के साथ उसकी इंटरेक्शन होती है. एक ही पाइनस का मेंबर मैंने नागपुर में देखा है, दैट इज ऑन द नॉर्थ अंबाझरी रोड. नॉर्थ अंबाझरी रोड पर जो वर्मा लेआउट है, वहां मेन रोड पर ही कंपाउंड के अंदर एक साइकस का पाइनस का बिग ट्री है. बहुत रेयरली अपने यहाँ होता है बिकॉज क्लाइमेट ऑफ नागपुर इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ कोनिफर्स. सो यू कैन ऑब्जर्व हियर द पाइनस. आप लोगों में से बहुत सारे गए होंगे पंचमढ़ी. हेलो. Yes, sir. पंचमढ़ी गए Yes, होंगे. sir. शायद पंचमढ़ी में आपने बहुत सारे जिम्नोस्पर्म देखे होंगे. पाइनस के कोन्स, वुडन कोन्स, कुछ आर्टिकल्स भी सेल किए जाते हैं. That indicates that Cycas, Pinus and such a type of gymnosperms are mainly available in area wherever there is high altitude. You can observe, I think most of you might have taken section of needle of the Pinus. पाइनस की नीडल या पाइनस के लीफ का क्रॉस सेक्शन लिया होगा. सो दिस वन इज क्रॉस सेक्शन. So you just observe here, root shows symbiotic association with fungi or cyanobacteria, that is just like nostoc. Fungi, that is mycorrhizal association of Pinus. Fungi helps in absorption of minerals. Algae helps coralloid roots of Cycas with nostoc and Anabina. Algae helps in nitrogen fixation. So this one is the association. Then stem. आप जस्ट देख लो व्हाट आर द वेरिएशंस. स्टेम्स आर यूजुअली इरेक्ट, ब्रांच्ड एंड वुडी. आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे ब्रांचेस है, लेकिन आप यहाँ साइकस के बारे में देखते हैं तो अगर ब्रांचेस नहीं है. क्या आप लोगों में से कोई महाराज बाग में गया है? Yes, sir. महाराज बाग में साइकस अगर आपने देखा है तो सेंटर में साइकस के बहुत सारे प्लांट्स है जिसको कवर करके रखा है एंड दीज आर ब्रांच्ड साइकस. इवन आप लोगों में से किसी ने इंस्टीट्यूट के सामने जो एग्रीकल्चर कॉलेज का प्रीमाइसेस है वहां भी देखा होगा, तो देयर आर ब्रांचेस इन साइकस. सो कॉलमनर स्टेम एंड टुवर्ड द अपेक्स crown of a leaf and sometimes branches observed in case of cycas. Then this one is a zamia. आप ऊपर की पहली स्लाइड में अगर स्टेम देखते हैं तो स्टेम के ऊपर स्कार दिखता है, लीफ स्कार. लीफ निकल जाने के बाद जो पोर्शन स्कार रहता है दैट इज लीफ स्कार. क्या आपने पपैया का स्टेम देखा है? हेलो. पपैया का स्टेम आप लोगों ने देखा है? Yes, sir. जस्ट मिनट, मैं अगर अवेलेबल है तो पपैया स्टेम आपको दिखाता हूं. सो यू हैव आइडिया रिगार्डिंग पपैया स्टेम. यहां देख लो, आपको ये पोर्शन दिख रहा है. हेलो.
Yes, sir. Yes, sir. सो जब लीफ निकल जाता है तो उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज अ स्कार. सो सच अ टाइप ऑफ लीफ स्कार. यहाँ आपको दिख रहा है लीफ स्कार बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है, और इस फिगर में आप देखते हैं तो वो लंबा हो रहा है. जैसे ही उसकी गर्थ बड़ी हो जाती है तो इट बिकम्स सच अ नैरो. सो यू कैन ऑब्जर्व such a type of leaf scar which are available in case of a gymnosperm. So whatever gymnosperm you have observed, here is a leaf scar. आ रहा है ध्यान में? So these are the leaf scars. Stem underground in Jamia. Presence of leaf scar is a characteristic feature of a gymnosperm. I am trying to introduce you different characteristic features of a gymnosperm. Gymnosperm के अलग अलग characteristic features से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सो दैट इट इज इजी टू लेटर ऑन स्टडी द जिम्नोस्पर्म. जस्ट अ मिनट. हम नेक्स्ट स्लाइड कौन सी देखना चाहते हैं, देखते. तो लीव्स यूजुअली डायमॉर्फिक. मैं फिर से बताता हूं, दिस इज अगेन ए इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म. लीव्स आर डायमॉर्फिक, दैट इज फॉलिएज एंड स्केली लीफ. फॉलिएज का मतलब है फोलिया, दैट इज अ लीफ. फुल्ली एक्सपांडेड लीफ, ये जो यहाँ दिखता है आपको फुल्ली एक्सपांडेड लीफ है, और यहाँ बेस में जस्ट पेपरी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रहता है, दैट इज नोन एज स्केली लीफ. सो लीव्स हैज अ थिक क्यूटिकल, स्टोमाटा यूजुअली sunken, साइकस शोज सर्सिनेट वर्नेशन. आप यहाँ दिखते हैं सर्सिनेट वर्नेशन दिखने को देखते हैं. मेसोफिल डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसाइड एंड स्पॉन्जी टिश्यू. मेसोफिल अनडिफरेंशिएटेड इन पाइनस. Leaves do not have lateral veins. आप सभी लोगों ने साइकस का सेक्शन लिया है तो no need to explain much more regarding its section. Roots diarch and polyarch. Tanniniferous cells present in cortex. Vascular bundles collateral and open. So you just go through these different characteristic features of gymnosperm. Again, phloem consists of sieve tube and just a minute. Xylem के characteristic features देखो. Xylem consists of tracheids and parenchyma. Vessels are absent in xylem. सबसे important character है, जैसे कि हमने लीफ के characteristic feature के बारे में देखा था, dimorphic leaf है, वैसा in majority of the gymnosperm vessels are absent in xylem of gymnosperm. वेसल्स, लेकिन वेसल्स आर प्रेजेंट इन नीटम, और इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि नीटम इज क्रेडल बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म. यहाँ आप देख सकते हैं नीटम में लीफ जो है फुल्ली एक्सपांडेड है. जस्ट अ मिनट. So this is the structure of wood in case of a nictum. Here you can observe presence of vessel, but in rest of gymnosperm vessels are absent. Regarding phloem, phloem consists of sieve tube and phloem parenchyma, लेकिन companion cells are absent. Just a minute. कोई मुझे बता सकता है xylem and phloem simple tissue है या complex है? हेलो, कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? जब बेसिकली एक से ज्यादा अलग अलग टिश्यू बन के ये बनता है तो इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स. सिंपल टिश्यू कौन से है? पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्लेरेंकाइमा. और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से है? जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम बनता है वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेंकाइमा एटसेट्रा से. फ्लोएम बनता है कंपेनियन सेल्स, देन फ्लोएम पैरेंकाइमा एटसेट्रा. लेकिन इन केस ऑफ gymnosperm companion cells are absent. So this is interesting feature in case of a gymnosperm. Now again different characteristic feature देखो. Plants are heterosporous. क्या मतलब है heterosporous का? Anybody? Hello? Two types of spores रहते हैं. Different Yes. spores. ये एग्जाम्पल बता सकते हैं आपने कोई ऐसा हेटेरोस्पोरस जनरा पढ़ा है? It may be either bryophyte or may be pteridophyte. हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट कोई बता सकते हैं? हेलो, चलो टेरिडोफाइट के कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? किसी के भी याद में नहीं है? हेलो Sir, Silaginella. Yes, Silaginella. So Silaginella is a typically heterosporous pteridophyte.
हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा सिलाजिनेला। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो मार्सिलिया भी हेट्रोस्पोरस है, लेकिन ओपियोग्लोसम इक्विसिटम व्हिच यू हैव स्टडीड ड्यूरिंग द यूजी, दीज आर होमोस्पोरस। लेकिन साइकस में आपने देखा होगा मेल कोन इज डिफरेंट एंड फीमेल कोन इज डिफरेंट इन केस ऑफ साइकस। यहाँ आप देख लो साइकस का मेल कोन, यहाँ आप देख सकते हैं साइकस का मेल कोन, एंड दिस वन इज अ साइकस मेगास्पोरोफिल और साइकस female cone. Microsporangia produced in microsporophyll. Sporophyll aggregated to form cone or strobilus. Cone or strobilus are monosporangiate. Just a minute. क्या आपने पाइनस का मेल और फीमेल कोन देखा है? हेलो रितु, हेलो शर्मा, मेरी आवाज आ रही? रितु शर्मा, चलो रितु नहीं है अवेलेबल, तो कौन है? शिवानी। यस सर। पाइनस का मेल कोन आपने देखा है? प्रैक्टिकल में किया था? छोटे छोटे रहते थे मेल कोन, और मेल कोन से आपने प्रेस करके निकाला था माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स, एंड पोलन ग्रेन्स इन केस ऑफ पाइनस आर विंगेड। याद में है? पोलन ग्रेन विंगेड थे, याद में है क्या? मैं आपको चाहे तो और दिखा सकता हूँ। देखो विंगेड पोलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस, विंगेड पोलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस। अभी याद में आया कैसे पोलन ग्रेन निकाले थे आपने? हेलो यस सर। श्रुति बागड़े, आपने किया था ये? हाँ सर, प्रैक्टिकल में हुआ था ये। प्रैक्टिकल में किया था। ओके। सो as far as characteristic feature of gymnosperm is considered, male and female cone are many times separate. They are known as a cone or strobulus, and they are normally monosporangiate. यहाँ आपको और अलग अलग कोन दिखा रहे, जस्ट मिनट, और अलग अलग कोन आपको दिखा रहे। These are the different genera in case of which cones are observed. Male cone of Cycas, female cone of Cycas, actually it is known as a megasporophyll. Then male cone of Cupressus, then female cone of Cupressus, then male cone of Pinus, which is observed in the axil of a needles and it is a cluster. Then female cone of a Pinus woody. मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया था कि पंचमढ़ी मार्केट में ऐसे वुडी कोन्स के कुछ आर्टिकल्स बनाते हैं। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर के वुडी कोन्स जो है बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। देन मेल कोन इन केस ऑफ नीटम, फीमेल कोन इन केस ऑफ नीटम। और शुरू में आपने एक जो नीटम का वीडियो देखा था, वहाँ ग्रेप्स जैसे जो लग रहे थे, दैट इज अ सीड, और दे मे बी सीड और ओव्यूल इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। सो मेल एंड फीमेल कोन. Male cones are short-lived. Female cones live for many years. Microsporangia formed on abaxial side of microsporophyll. Microsporangia developed eusporangiate. U means from aggregation of a cell. शायद आपने इसके पहले eusporangiate and यानी aggregated sporangia की टर्म यूज की है। Then female cone. यहाँ साइकस का फीमेल कोन दिखा है, यहाँ उडी फीमेल कोन ऑफ पाइनस, और यहाँ ओव्यूल्स दिखा है ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस। मैंने सेकंड या थर्ड वीडियो आपको दिखाया था जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन कैसा होता है वो दिखाया था, दैट इज एम्ब्रियो सेल। सो female cone formed by aggregation of a megasporophylls. Megasporophyll may be foliar in case of a cycas, colline in case of a pinus. Megasporangium is better known as a ovule. Ovule is orthotropous. Ortho means straight. जैसे कि आपको मैं यहाँ डायग्राम देख लो, ओव्यूल्स अगर देखा तो ओव्यूल्स को तीन इंपॉर्टेंट, ये जो पोर्शन है दैट इज स्ट्रेट पोर्शन बोल रहे हैं क्योंकि माइक्रोपाइल रीजन ये है और ये फ्यूनिकल रीजन है। माइक्रोपाइल फ्यूनिकल रीजन एंड अटैचमेंट सेम लाइन में, इसलिए इट इज नोन एज ऑर्थोट्रोपस। अब यहाँ देख लो,
Anatropous, ana means inverted, क्योंकि this is micropolar region, then this one is a another polar region, and attachment जो है, this attachment role attachment is not on the, मतलब इसका स्टॉक है माइक्रोपाइलर पोर्शन और स्टॉक का पोर्शन एक ही लाइन में नहीं है, and hence it is anatropous ovule. Microspores are liberated at various stages of gametophyte. मैंने शुरू में एक वीडियो दिखाया था और उस वीडियो को मैंने बताया था कि इट इज पोलन शॉवर, इजंट इट? हेलो, Yes, sir. क्या आपने सनफ्लावर में ऐसा या मेज में आपने ऐसा पोलन शॉवर देखा है कभी? Yes, sir. कुछ लोगों ने अगर फील्ड में सनफ्लावर और मेज देखा है, अगर फील्ड में वो एंथेसिस पे है, सिर्फ प्लांट को अगर धक्का भी लगा तो ऐसा ग्रैन्युलर पाउडरी मास इज लिबरेटेड आउट. इज इट राइट? Yes, क्या sir. आपने कभी देखा है? सनफ्लावर में आपने देखा होगा लीफ के ऊपर बहुत सारा येलो डार्क पाउडर मिलता है, दैट इज नथिंग बट दिस पोलन ग्रेन्स. सो साइकस, यहाँ आप मेल कौन सॉरी माइक्रोस्पोर या पोलन ऑफ साइकस देखते हैं, यहाँ गिंगो का देखते हैं पोलन, और यहाँ गिंगो का स्पर्म या पोलन देखते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट जनरा. अब फीमेल कोन के बारे में यहाँ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. आर्किगोनियम हैज अ सिंगल एग एंड वेंटर कैनाल, आपको पता है. 3 सेल्स जो रहते हैं दैट इज सिनर्जिड्स, 3 रहते हैं एंटीपोडल सेल्स, और सेंटर में 2 फीमेल न्यूक्लियाई. सो पॉलिनेशन, यहाँ पॉलिनेशन विंड पॉलिनेटेड होता है. मैं फिर से आपको बताता हूँ, पॉलिनेशन इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ मेल कोन सॉरी मेल gametophyte or pollen from one plant to another plant. Pollination may occur through wind, through different birds or animal pollination, or sometimes even through water also. As far as pollination in gymnosperm considered, gymnosperms are entirely dependent on wind pollination. Orchids के बारे में, orchids normally depend on insect pollination. मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बताता हूँ. क्या आप लोगों को मालूम है पपाया में मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर डिफरेंट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. पपाया ऑर्चर्ड अगर आपने देखा है, पपाया की गार्डन अगर आपने देखी है, तो आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ प्लांट जस्ट 1 or 2 or 3 प्लांट्स आर मेल प्लांट्स. क्या आपने मेल और फीमेल फ्लावर्स पपाया के देखे हैं? हेलो, मैं आपको No. Yes, sir. चलो फ्लावर नहीं देखे. एक मिनट. मेल फ्लावर्स ऑफ पपाया, PAPAYA, जस्ट देख लो. आपको राइट हैंड साइड की फिगर दिख रही है, दीज आर मेल फ्लावर्स, और जहां मेल फ्लावर जिस प्लांट को है उसको कभी भी फ्रूट्स नहीं आते. ओके, हेलो. Okay, sir. Yes, sir. मेल Yes, फ्लावर्स sir. बहुत सारे हैं, आप थोड़ा सा देख लो, बहुत सारे मेल फ्लावर्स क्लस्टर में दिख रहे हैं. मैं अभी पपाया का फीमेल फ्लावर दिखाता हूँ, अलग अलग प्लांट पर है. मैं आपको फीमेल फ्लावर दिखाता हूँ, आप अभी यहाँ देख लो. सो दिस वन इज अ फीमेल फ्लावर, और फीमेल फ्लावर अगर आप देखते हैं तो कितने फीमेल फ्लावर यहाँ दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कम है. और कंपैरेटिवली आपने मेल फ्लावर देखे थे बहुत ज्यादा थे नंबर में. इज इट राइट? यहाँ देखो, मेल फ्लावर बहुत सारे, फीमेल फ्लावर बहुत कम. मैं आपको और थोड़ा एनलार्ज्ड फिगर दिखा सकता हूँ. देखो, फ्रूट और फीमेल फ्लावर दिख रहा है? Yes, sir. हेलो, मैं जानबूझ के आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ और एग्जांपल क्यों बता रहा हूँ ये भी पता था. पपाया के फ्लावर्स के बारे में, पपाया फ्लावर्स बहुत सारे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन पैदा करता है. दे आर वेरी माइन्यूट, and presence of only a single male plant is essential to fertilize all the female flowers from area of about 2 kilometer. मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान में आ रहा है? Yes, Male sir. and female plants and flowers are different in a papaya.
अगर 2 किलोमीटर के पेरीफेरी में एक भी सिंगल मेल फ्लावर का प्लांट अवेलेबल है तो इट कैन फर्टिलाइज. So just like that we are speaking in terms of gymnosperm. So gymnosperm में मैंने आपको पोलन शावर दिखाया था, मतलब बहुत सारे पोलन डेवलप होते हैं. और रीजन क्या है कि इट इज विंड पॉलिनेटेड. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, अगर sir. इंसेक्ट पॉलिनेटेड है तो कम नंबर ऑफ पोलन प्रोड्यूस्ड पर फ्लावर कम होते हैं. अगर विंड पॉलिनेटेड है तो बहुत सारे पोलन डेवलप करना पड़ता है, अदरवाइज पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल. सो दिस वन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म. जस्ट अ मिनट. कई बार मैं सामने जाके फिर वापस आ रहा हूं. हाँ, फर्टिलाइजेशन कैसा है? साइफोनोगैमिक, that is with the help of a pollen tube. Pollen tube functions as the sperm carrier. Embryo development is meroblastic. Meroblastic का मतलब है embryo develops from some part of a zygote. Angiosperms are also shows meroblastic development. Endosperm is present. शायद पहला वीडियो जो आपने देखा था उसमें आपने देखा होगा मेल गैमेट से जब एक न्यूक्लियर डिस्चार्ज होता है, इट मीट्स विद द सेकेंडरी बॉडीज और पोलर सेंटर में जो प्राइमरी न्यूक्लियर है उनके साथ, एंड दैट डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म. नॉर्मली एंडोस्पर्म इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड. जस्ट अ मिनट, मैं आपको और एक चीज बताता हूं सो दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो. क्या आप लोगों ने कोकोनट या नारियल देखा है? Yes, sir. Yes, sir. just a minute, एक मिनट. कोकोनट, कट फ्रूट, जस्ट मिनट. हाँ, ये फ्रूट देख लो. बाहर के पोर्शन को क्या बोलते हैं? एनीबडी? बाहर का ग्रीन पोर्शन जो है इसको क्या बोलते हैं? Epicarp. इपिकार्प. एग्जैक्टली, इपिकार्प इज अ स्मूथ. ये जो अंदर का पोर्शन नेक्स्ट सक्सेसिव लेयर देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? Mesocarp. मेसोकार्प. मेसोकार्प इज नॉर्मली फाइबरस. और ये जो आउटर स्टोनी पोर्शन दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज, ये बाहर का स्टोनी पोर्शन Endocarp. एंडोकार्प. और दिस वन इज अ कोबरा व्हिच इज एडिबल. इज इट राइट? Yes, sir. Yes, sir. So which part of fruit in case of coconut is edible? Endocarp. Endocarp. आप फिर से भूल कर रहे हैं. मैं फिर से जान के आपको बताया था. इपिकार्प बाहर का स्मूथ है, मेसोकार्प फाइब्रस है, एंडोकार्प जो पोर्शन है वो हार्ड एंड स्टोनी दिस पोर्शन है. आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, मैं कर्सर घुमा रहा हूं. एंडोकार्प ये स्टोनी है, बाहेरची मराठीत त्याला करवंटी म्हणता. and this one is edible portion and this edible portion is endosperm, not endocarp. Is it right? Yes, sir. Endosperm is showing portion of a triploid nucleus. and you might be known, शुरू में आप में नारियल में पानी या बटर मिल्क जो रहता है आप उसको रिफ्रेशिंग ड्रिंक बोलते हैं, वो टॉनिक करके यूज करते हैं. इज इट राइट? Yes, sir. Because Yes, sir. it shows Yes, presence sir. of large number of minerals. मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो. ड्यूरिंग अर्लियर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट नारियल में जो पानी होता है दैट इज नथिंग बट इट इज लिक्विड एंडोस्पर्म. ध्यान में आ रहा है? लिक्विड एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म इज अ ट्रिप्लॉइड. बाद में आपने देखा होगा मलाई वाला नारियल बनता है, बहुत मीठा रहता है और थोड़ा सा स्टिकी और मीठा भी लगता है. इट इज अगेन एंडोस्पर्म व्हिच लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है. आता है? ध्यान में आ रहा है? Yes, sir. और उसके बाद खोबरा जो आप यूटिलाइज डायरेक्टली करते हैं, नहीं तो खोबरे का यूज आप ऑयल करके या एडिबल अलग अलग फूड प्रिपरेशंस में भी करते. तो वैसे ही आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में मैंने यहाँ दिया है. पोलन ट्यूब फंक्शंस एज अ स्पर्म कैरियर, एम्ब्रियो डेवलपमेंट मेरोब्लास्टिक, और एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड. कोकोनट में एंडोस्पर्म कैसा था मैंने बताया? Triploid. ट्रिप्लॉइड. लेकिन यहाँ
एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड। अभी मैं फिर से आपको बताता हूं, समझ लो आपके पास अगर 100 रुपए है और दूसरे आपके फ्रेंड के पास 300 रुपए है, तो पावरफुल कौन है? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पावरफुल कौन है? किसकी क्रय शक्ति या कैपेसिटी टू परचेज ज्यादा है? हेलो, 300 है वो वैसे। सो यू रिमेम्बर, मैंने बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म जिनके साइमल्टेनियस बताए, एंड व्हाई एंजियोस्पर्म इज अ पावरफुल ग्रुप एंड हाउ एंजियोस्पर्म इज डिफरेंट फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। पहला कैरेक्टर मैंने क्या बताया था, देखो, इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म लीफ आर डायमॉर्फिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने देखा था, लीफ मेनी टाइम्स दीज आर जेरोफाइटिक। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था, लीव्स इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म आर शोइंग प्रेजेंस ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट इनसाइड द डीप पिट्स और ग्रूव्स, जिसको हम बोलते थे सिंडेटोचेलिक स्टोमाटा। नेक्स्ट कैरेक्टर मैंने बताया था, जाइलम शोज एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन वुड ऑफ अ जिम्नोस्पर्म। और अभी अभी मैंने कैरेक्टर बताया कि एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। याद में आ रहा है? यस सर। मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसका रीजन ये है कि यू शुड रिमेम्बर दीज थिंग्स। उसके बाद देखो, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, एंड सो जिम्नोस्पर्म्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एंजियोस्पर्म। अब उसके बाद नेक्स्ट, पॉलीएम्ब्रियोनी इज कॉमन। क्या आपके ध्यान में है पॉलीएम्ब्रियोनी का फीचर? हेलो, क्या आपने पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में कुछ सुना है? हेलो, Yes, sir. क्या है पॉलीएम्ब्रियोनी? Sir, the formation of more than one embryo. Yes, formation of more than one embryo. Apomixis, polyembryony, I think you have you might have gone through these features. Just a minute. अगर कुछ वीडियो अवेलेबल है तो हम देखते। आपको सिर्फ देखना है। आवाज आपको आ रहा है? नो सर। वीडियो का आवाज नहीं है? नहीं। नो सर। ओके ओके, ठीक है। जस्ट जस्ट मिनट, हो सकता है okay. At the end of lecture, I am going to share some links related to YouTube links related to gymnosperm, so that you have idea. So you just observe, polyembryony is again important feature in case of a gymnosperm. So formation of many embryos, fertilization of more than one egg, division of zygote, seed coat present, integument present, seed winged in case of a pinus. So these features we have observed.
Number of cotyledon may be 1 or 2 or many. Seeds usually have a resting period. Rest period है कुछ, इसमें आप देखते हैं कि there is a dormancy. Distinct alternation of generation is observed. Diploid sporophytic generation dominant. Haploid gametophytic stage is reduced. Gametophytic phase is dependent on sporophytic phase. अब ये डेफिनेशन इसके तरफ मुझे एट दिस स्टेज देखने की जरूरत नहीं लग रही. जस्ट मिनट. अब देखते हैं some of the important classification systems. So Van Tegen in 1898 treated gymnosperm as one of the two divisions. Spermatophyta divided into gymnosperm and angiosperm, or they are known as astigmaty and stigmaty. Gymnosperm divided into cycadens, nitales and coniferales. So this was the classification by Tegen in 1898. आप लोग सभी सुन रहे हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. मत अभी एक 15 मिनट लिया तो चलेगा ना? हेलो हेलो. हाँ सर. हाँ सर. यस सर. नॉर्मली मुझे छुट्टी के दिन जब लेता हूँ तो मैं थोड़ा आधा घंटा 15-20 मिनट ज्यादा ही लेता हूँ, क्योंकि एक तो पहले अपने 2 लेक्चर्स मिस हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि संडे को भी मैं 10 बजे और एक लेक्चर ले लूँ तो अपना सिलेबस लेवल पे आ जाएगा. कल मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे पास जो सिलेबस है उसका बाइफर्केशन दिया था, which requires about 10 to 11 lectures to complete. अभी भी ये अपना सेकंड लेक्चर है, लेकिन I am explaining only general things which are required as a preparatory for studying entire gymnosperm and regarding the our important group, that is a group of Pinus and another group of taxels. मतलब गिंगोइल्स एंड टैक्सेल्स के लिए जितना जरूरी है उतना ही मैंने आपको अभी बताया है. So just have an idea regarding another classification by Ecker in 1889. Phanerogram or spermatophyta divided into gymnosperm and angiosperm. लेट मी रिपीट, हम जब लेफ्ट हैंड साइड को क्लासिफिकेशन का कोई ग्रुप लिखते हैं तो इट इज कंपैरेटिवली प्रिमिटिव ग्रुप, एंड राइट हैंड साइड के ग्रुप है जो है वो राइट हैंड साइड का जो ग्रुप है दैट इज इवॉल्व्ड ग्रुप और एडवांस्ड ग्रुप. इसलिए आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में पहले अल्गी, उसके बाद फंजाई, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और आखिरी में एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म में साइकेडेसी, कॉर्डाइटेसी, कोनिफरेसी और निटेसी. कोनिफरस में पिनोइडी और टैक्सोइडी. पिनोइडी फर्दर डिवाइडेड इनटू एब्रेटिनी एंड क्यूप्रेसिनी और टैक्सोइडी डिवाइडेड इनटू टैक्सी एंड पोडोकार्पिनी. सो दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन. आप लोग एक बात फिर से ध्यान में रखो कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स पुट फोर्थ बाय डिफरेंट वर्कर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन हमें उसमें से एक कुछ तो सेंट्रल आइडिया ध्यान में रखनी है. अभी मैंने इकर का क्लासिफिकेशन आपको दिखाया था, दैट इज 1889. नेक्स्ट देख लो सबसे इंपॉर्टेंट और favorite classification of the gymnosperm, which was put forth by Coulter and Chamberlain in 1910. In 1910, Coulter and Chamberlain has divided gymnosperm into 7 orders. These are like Cycadopellicales, Cycadales, Benititales, Chordatales, Coniferales, Gingoales and Nitales. That is 7 orders. शुरू में हमने 12 ऑर्डर्स देखे थे, यहाँ आप देख रहे 12 फैमिलीज देखे थे, यहाँ आप 7 ऑर्डर देख रहे हैं. लेकिन 7 ऑर्डर से पहले वाले 1, 2, 3, 4 ऑर्डर जो है दीज आर एक्सटिंक्ट. मतलब साइकेडोफिलिकल्स एक्सटिंक्ट, साइकेडेल्स comparatively extinct, Benititales extinct, Chordatales extinct, and only 3 orders, Coniferales, Gingoales and Nitales are living orders. Coniferales again divided. Coniferales सबसे बड़ी है. Coniferales divided into 2. First one Pinaceae, second one Taxaceae. Pinaceae के सब फैमिलीज देखो, Abretini, Taxodini, Cupressini and Araucarini. और Taxaceae के 2 फैमिलीज है, Taxini and Podocarpini. मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि नो नीड टू वरी अबाउट दीज डिफरेंट थिंग्स व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग. These are basic things and I am going to share my whatever presentation with you on the Telegram, so you go through it. No need to worry regarding the notes. मेरे सभी नोट आपको
रेडीमेड मिलेंगे, आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं एंगलर एंड फ्रंटल 1926 एंड रेंडल का क्लासिफिकेशन। उसमें सामने देखो, क्लास 1 मोनोजाइलिक दैट इज वुड इज नॉट कॉम्पैक्ट, पिक्नोजाइलिक वेयर वुड इज कॉम्पैक्ट। साहनी का क्लासिफिकेशन 1920, जिम्नोस्पर्म डिवाइडेड इनटू फाइलोस्पर्मी एंड स्टैचियोस्पर्मी। फाइलोस्पर्मी के 3 ऑर्डर्स, साइकेडोपिलिकल्स, बेनिटाइटल्स एंड साइकेडेल्स। स्टैचियोस्पर्मी के 4 ऑर्डर्स, कॉर्डाइटल्स, कोनिफेरस, गिंगोएल्स एंड टैक्सेल्स। उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन 1 साइकेडोफाइटा। अब इसके डिटेल्स की तरफ अभी जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बायर होस्ट का क्लासिफिकेशन 1971, बायर होस्ट डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इनटू 3 क्लासेस एंड 11 ऑर्डर्स। 3 क्लासेस कौन से है? साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा एंड निटोप्सिडा। इसलिए आप देख लो, ग्रेजुएशन में आपने एक जनरा देखा था साइकस, कोनिफेरोप्सिडा का जनरा आपने देखा था पाइनस, और निटोप्सिडा का आपने शायद जनरा देखा था इफिड्रा। इज इट राइट? हेलो सर। Yes, sir. अंडरग्रेजुएट में साइकस, पाइनस और इफिड्रा शायद पढ़ा था। सो दिस वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म बाय बायर होस्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन बाय टेलर। Taylor 1981 divided the gymnosperm into 6 divisions. That is progymnospermophyta. Pro means primitive, gymnospermo means gymnosperm, and phyton means plant. Then pteridospermophyta, मैंने इसके पहले आपको पहले बताया था जिम्नोस्पर्म के एंसिस्टर करके कौन है, तो pteridosperm, sperma means seed. Pteridosperm is highly evolved group of pteridophyta, that is tree fern. मैंने बार बार पहले लेक्चर में बताया था कि जुरासिक पार्क में डायनासोर के बैकग्राउंड पर जो भी प्लांट्स थे, कोकोनट लाइक, these plants are pteridosperms. शायद मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट से जो 4-5 लोग हैं, उसमें एक बागड़े है, एक ऋतु शर्मा है और 2-3 लोग हैं, शिवानी है। क्या आपने MSc 2 के लैब में कभी गए हैं अपने? No, sir. अच्छा, बाद में जब आओगे तो आप देख लो, MSc 2 के लैब में अपने एक बहुत बड़ा फोटोग्राफ है, करीबन इट इज अबाउट 5 by 5 फीट इन अ डायमेंशन, और उस फोटो में उस जुरासिक या ट्रायसिक टाइम का प्लांट्स कैसे थे इसका फोटोग्राफ है। सो आप देख लो यहाँ, अकॉर्डिंग टू टेलर, gymnosperm divided into 6 divisions, that is progymnospermophyta, pteridospermophyta, cycadophyta, phyta means plant, cycadioidophyta, gingophyta and coniferophyta. Then Guilford and Foster 1989 raised the important group to the rank of division progymnospermophyta. This is the classification according to Guilford and Foster 1989. अब recently in 2011 new classification and linear sequences of extant, that is still existing gymnosperm based on previous molecular and morphological, phylogenetic and other studies were produced by Martin J.M. and this one is like this. मैं आपको फिर से बताता हूँ, कोल्टर चेम्बरलिन से लेकर मार्टिन तक जितने भी बड़े बहुत सारे क्लासिफिकेशन बताए हैं, you come to know that there are 3 important groups of gymnosperm. First one cycads, second important group is group of conifers, and third important group is group of our nettles. So these are the 3 important groups. अभी आप PG पढ़ रहे हैं तो at least you should have idea. इसलिए मैंने बार बार बहुत सारी चीजें आपको बताई है, बाद में ऐसा होना नहीं चाहिए सिर्फ सर ने पाइनेल्स और टैक्सेल्स पढ़ाए, खत्म हो गया। आप यहाँ देख लो, टैक्सेस के 6 जनरा 28 स्पीसीज इंक्लूडिंग ऑस्ट्रोटैक्सस एंड सूडोटैक्सस। पाइनेल्स में आप देख लो 11 जनरा 225 स्पीसीज एंड जनरा आर लाइक सीडरस, पाइनस, पीसिया। एरोकैरिया से 8 जनरा, इसमें एग्जांपल था एरोकैरिया। मैंने शुरू वाले स्लाइड में भी आपको ये दिखाया था। अभी मेरे लिए जो जरूरी बात है, दैट इज सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मैंने पहले ही डिस्कस किए हैं।
अब सबसे बड़ी बात मेरे लिए जो है, यू शुड बी वेल अवेयर विथ डिफरेंसेस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट। जस्ट अ मिनट, क्या आप लोगों को ये दिखाई दे रहा है? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. जस्ट मिनट, मैं थोड़ा इसको एडिट करता सो दैट इट इज इजी टू ऑब्जर्व एटलीस्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है। जस्ट मिनट, आपको दिखना चाहिए अच्छा। जस्ट मिनट। चलो, आपके लिए अभी जो स्लाइड मैंने बनाई है इसको मैं व्यू करता हूं सो दैट अभी अभी मैंने फाइनल एक स्लाइड बनाई थी, उस स्लाइड को हम पहले देखते हैं। और हाँ, स्लाइड दिख रही? हेलो? Yes, sir. So Yes, sir. here are the differences between gymnosperm and pteridophyte. जिम्नोस्पर्म ऑकर इन जेरोफाइटिक हैबिटेट, मैंने पहले ही बताया था जिम्नोस्पर्म जेरोफाइटिक हैबिटेट दिखाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स हैव टैपरूट, यूस्टिलिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या आपको स्टीलर टाइप्स ध्यान में है? STELE, स्टीली। फोर्थ सेम में एनाटॉमी में आपने पढ़ाया था, स्टीली मींस एरिया एनक्लोज्ड बाय एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, and there are different types of stele such as protostele, actinostele, eustele, atectostele, etc. क्या आपके याद में है? Yes, sir. Yes, So this sir. one is eustelic organization. Secondary growth is present. Secondary growth मतलब गर्त बढ़ती है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, क्या मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने मिलती है नॉर्मल No, sir. सर्कमस्टेंसेस में? नहीं। अगर मोनोकॉट में No, sir. सेकेंडरी ग्रोथ है तो इट इज बिकॉज ऑफ ओनली मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ है तो इट इज एबनॉर्मल, बिकॉज फॉर सेकेंडरी ग्रोथ अपना cambium and its position as well as seasonal nature of cambium is important. Then stem are aerial, only microspores are shed from microsporangia. Pollen tube is developed to carry male gametes to archegonium. Archegonia lack neck canal and neck canal cells. Megasporangium is protected by integument and is called ovule. वाटर इज नॉट इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, लेकिन आपको पता है एंजियोस्पर्म के लिए वाटर इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। प्रेजेंस ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इज अर्लियर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट and seeds are present. So these are the differences between gymnosperm and pteridophytes. अब आपके लिए दूसरा जरूरी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के डिफरेंसेस देखो। जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट मोस्टली वुडी ट्रीज, यूनिसेक्सुअल मे बी मोनोसियस और डायोसियस। मेजॉरिटी ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स आर पेरिनियल, रेयरली रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव मींस। फेसल्स इन जाइलम एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स फ्लोएम्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। मैं बहुत जल्दी सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं कि यू आर बेटर नोन विद दीज फीचर्स, बट जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दीज फीचर्स।
ये सभी चीजें आपने कभी न कभी देखे हैं, जस्ट आपको रिकलेक्ट करना है। अब 13 नंबर का देखो, एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड, अभी अभी हम लोगों ने देखा था ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. endosperm haploid in gymnosperm while triploid in angiosperm। ट्रिप्लॉइड एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म के लिए एग्जांपल कौन सा बताया था मैंने? कोकोनट। कोकोनट, यस, जिसको आप बोलते हैं खोबरा। देन एंडोस्पर्म इज हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट। उसके पहले, सबसे पहले मैंने जो आज वीडियो दिखाया था उसमें डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन दिखाया था। उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में फ्रूट जो है नेकेड है, या सीड्स जो है नेकेड है, फ्रूट फॉर्मेशन एज सच नहीं है। तो जस्ट विथ ऑल दीज करीबन आज आप लोगों ने 54 अलग अलग स्लाइड्स शायद आप लोगों ने देखे। मैं आपको एक आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर एक अभी पोस्ट कर रहा हूं। दैट इज, मैंने जैसे शुरू में बताया था कि मैं आपके टेलीग्राम पर कुछ लिंक शेयर करूंगा। मैं अभी अभी कुछ लिंक शेयर कर रहा हूं। आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो लिंक मैंने भेजे हैं, ये लिंक को क्लिक करके, अगर क्लिक करना है तो क्लिक करके या इमेज को कॉपी पेस्ट करके इन लिंक्स पर कुछ वीडियो है उनको देखना है। ध्यान में आ रहा है? Yes, sir. मैंने अभी अभी आपके ग्रुप पर कुछ लिंक्स भेजे हैं, इनको कॉपी कर लो, नहीं तो डायरेक्ट टाइप कर लो, सो यू हैव गुड आइडिया रिगार्डिंग दिस जिम्नोस्पर्म। तो आई थिंक विथ दिस शॉर्ट वी शुड स्टॉप हियर। कौन है अभी? संपदा राउत, शीतल बिस्ने, शिवानी सांबारे, श्रुति बागड़े, श्रुति कटरे और स्नेहल न्यारी। अच्छा, मैं और एक बात बताता हूँ। शायद आप लोगों को पता है कि मैंने पहले 2 हफ्ते में क्लासेस नहीं लिया था, और जो इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है वो अच्छी तरीके से जानते हैं, जब मेरा क्लास लेने वाला सर आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज कट तो रही है। मैं पहले ही बता देता कि कल मेरा सर आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। हेलो, समझ नहीं आया क्या बोले आपने। सर आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। आवाज आ रही? हाँ सर अभी आ रही है। हेलो, हाँ सर अभी आ रही है आवाज। आवाज आ रही है? हाँ सर अभी आ रही है। हाँ, अभी आ रही है। एक दिन पहले Yes, नॉर्मली sir. अगर क्लास होने वाला नहीं है तो एक दिन पहले या कम से कम 1 घंटा पहले मैसेज भेजता हूं कि मैं आज क्लास लेने वाला नहीं हूं। और मैंने पहले ही आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड ड्यू टू ऑफिशियल वर्क और एनी टेक्निकल इशू आई एम अनेबल टू कंडक्ट सम टाइम। बट अगर नहीं हुआ तो भी मैं संडे को या जब भी टाइम अवेलेबल है तो मैं मेरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा। वन मोर थिंग, संडे को आपका क्लास फिर से मैं 10 बजे ले रहा हूं, चलेगा? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। संडे को Yes, sir. 9:50 तक लिंक भेज दूंगा। एंड आज जितना भी हुआ है उसका पीडीएफ मैं आज शाम तक अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देता हूँ। मुझे और एक बात बता दीजिए, टेलीग्राम पर मैंने बहुत सारे बुक्स और कुछ मटेरियल भेजा था, क्या आप लोगों ने वो देखा है? Yes, sir. अच्छा, आउट ऑफ 21 ओनली 16 आर प्रेजेंट, और 5 लोग कहाँ गए? क्या प्रेजेंट थे और क्विट हो गए? क्या 16 ही थे? हेलो, 16 ही लोग थे क्या? यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है। सो लेट अस वी कैन मीट ऑन संडे एट 10 AM। तब तक आप जो भी मटेरियल शेयर किया है या किया जाएगा
उसकी तरफ ध्यान दे दो. एंड थैंक यू वेरी मच. वी आर मीटिंग ऑन संडे 10 AM. ओके. Okay, sir. Yes. Okay, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच.